Today we will be starting with the concept of enthalpy, because this is the concept which comes Okay. when we are dealing with any kind of the thermal system. So enthalpy Okay. is generally being represented by the symbol H, and it is being given by the H is equal to U plus T B. So we can see that enthalpy is the combination of two things. One is the U, and U is internal energy, and P we are taking for the pressure, and V we are taking for the volume. Now we go for the concept of the internal energy. What is the internal energy? So when we say that we are talking about the internal energy, then we are dealing with the micro level thermodynamics. There are two parts which we call this. One is the macro level and one is the micro level. So when we are dealing with the macro level thermodynamics, then we are considering that the whole system will be behaving, or we will observe the behavior of the whole system. When we talk about the micro level thermodynamics, then we will be dealing with the atomic level of the system. So to understand the internal energy, we have to go for the micro level of the thermodynamics. And if we talk about the micro level of thermodynamics, then we can say that if we are having any gas, either it will be in the form of atoms or it will be in the form of molecules. जैसे कि अगर मान लीजिए हम एटम्स की बात करें, अगर हम देखते हैं such as argon. Argon is a inert gas. It is the inert gas, and it is also present in the environment, although it is in a very less amount. So, but it is inert gas, so it will not combine with other gases, and we will find it as it is. So we will be saying that it is the atoms of the argon are present. But if we talk about the O2, CO2, NO2, then these are having more than one atom. So we will call them that these are present in the form of the molecule. So the presence of the gas as the atom and molecule defines many properties, or we can say that it is responsible for many the properties of the gas. And these properties include specific heat, boiling point, and other properties which are depending upon whether the gas is as the atom or the gas is as the molecule. Now, what makes the difference or how the difference is being made, that will be depending upon the internal energy. So from the concept of the atom and molecule, we have go to the concept of the internal. So when we say that, or we talk about the internal energy, then what we are doing, we are having three kinds of the energy which is being contained by the gas or molecules of the gas. So the first energy is translational energy. Translational. Second one is the rotational. And third one is the vibrational. So we will see that how these three kinds of energy, translational energy, rotational energy, and vibration. So when these three energies will be combined all together, then we say that we are having the internal energy, or the amount of the sum of the amount of the translational, rotational, and vibrational energy is called as the internal. तो हम जब तीनों एनर्जी का सम कर लेंगे या जान लेंगे उनके बारे में, तब हम कहेंगे कि ये तो जमा करने के बाद उनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है, that is the internal. So Okay. we will go for these one by one. Suppose I am having a container, and just I close this container. So what I am doing, I am having it. मान लीजिए कि हमारे पास अभी एक closed container है. So if we talk about the type of the system may be open, system may be closed, and system may be isolated.
So open system are the system which can exchange mass plus energy or heat with the surrounding. अगर हमारे पास एक ऐसा system जिसमें से मास और हीट दोनों ही बाहर जा सकते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि हमने Okay. एक चाय रखी है, देन इट इज ओपन सिस्टम, उसमें से मास और हीट दोनों ही बाहर जाते हैं। अभी देयर विल बी वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी डिस्कसिंग नॉट इन दिस क्लास बट इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज अबाउट द हीट, बिकॉज we are dealing with the refrigeration system, so the concept of heat is very important. Then we will see what is the heat in the next session. So here we are taking the closed system. So the system is closed at this point means that just we are putting the lid on the glass. कि जो हमारे पास जो भी सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं सिस्टम को, ठीक है जी। तो अब उसको करने के बाद हम क्या करते हैं, सपोज आई टेक अ सिंगल एटम, मान लीजिए अभी हमारे पास आर्गन का एटम है, तो इट इज बीइंग फाउंड और बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो थ्योरी का मतलब ये है कि वो चीज़ होती है, अब उसका एग्जैक्टली कारण क्या है वो नहीं हमें पता। हमने जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की उसके बेस पे कुछ एजम्पशंस कर लिए, कुछ थ्योरी बना ली, दैट विल बी कवर्ड विद द काइनेटिक थ्योरी इन गैस, एंड दिस वाज गिवन बाय जीएन ल्यूइस, गिलबर्ट न्यूटन ल्यूइस। तो जीएन ल्यूइस ने सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात की थी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि जो भी हमारे पास एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन एंड द मोशन इज रैंडम। कि जो भी हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में है, दे कीप ऑन गोइंग एंड दैट इज रैंडम। रैंडम का मतलब ये है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और हमें पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, बस वो है कि दैट इज हैविंग मोशन, रैंडम मोशन। सो दिस Okay. रैंडम मोशन इज द वेलोसिटी, और ये जो रैंडम मोशन है जो इसकी वेलोसिटी होती है ये काफी ज्यादा होती है। वी कैन से दैट इफ यू आर हैविंग ए आर्गन मॉलिक्यूल एंड दैट इज एट नियरली 30 डिग्री सेल्सियस, then the order of the velocity for this argon molecule is nearly 4.2 kilometer per second. So we can see that this is a very high velocity. एक आर्गन का एटम या जो भी हमारे पास है और वो लगातार मूव कर रहा है और उसकी मूव करने की वेलोसिटी लगभग 4.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। और जबकि अगर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम ग्रेविटी लेते हैं, इन दैट व्हाट वी कंसीडर दैट the acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second. So we can say that this is a very less quantity. कि अगर आप इसको देखेंगे, that is the 4.2, or I convert this into 4,200 meter per second, which is a very high velocity. And this acceleration due to gravity is not very much in this comparison. कि अगर मान लीजिए हम इससे कंपैरिजन करें तो ये बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें जो एटम्स की अपनी एनर्जी है, तो उसमें जो हम एक्सटर्नल इनपुट दे रहे हैं बाय ग्रेविटी, दैट इज वेरी लेस। कि ग्रेविटी के द्वारा दिया गया इनपुट तो बहुत कम हो जाता है। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो हमें ग्रेविटी के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वी कैन नेग्लेक्ट द टर्म्स ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि जो एटम्स हैं उनकी अपनी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है काइनेटिक थ्योरी में कि ये एटम्स मूव तो कर रहे हैं और ये एटम दूसरे एटम से टकराएंगे भी, और दीवार से भी टकराएंगे। और इस सारी प्रोसेस में जिसमें एटम एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, दे विल नॉट लूज एनी एनर्जी। वट दे विल डू, दे विल नॉट लूज एनी एनर्जी और दे विल नॉट डिस्ट्रक्ट एनी एनर्जी। ये एटम्स दीवार से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, पर लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब कोई एनर्जी खत्म नहीं होगी। जितनी एनर्जी मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने मान के चले कि इस सिस्टम के अंदर 100 जूल ऑफ एनर्जी थी उनकी मोशन और दूसरी चीजों की वजह से, तो 1 घंटे में 2 घंटे में अगर मान लीजिए हम सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं, इसमें से बाहर से कोई हीट नहीं आती है और इसे कोई वर्क भी नहीं करना है, तो 1 घंटे के बाद भी इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो 100 जूल ही रहेगी। एनर्जी ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। लेकिन रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक गेंद है, उस गेंद को हम दीवार पे मारते हैं या हम गेंद को मार के छोड़ देते हैं कहीं पे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, एनर्जी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। पर लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि जितनी एनर्जी इसके अंदर है और इनिशियल थी, दैट विल रिमेन इनसाइड द सिस्टम, वो सिस्टम के अंदर रहेगी, वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो ये तो हो सकता है कि वो अपनी कुछ एनर्जी एक दूसरे को दें, अपनी कुछ स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज करें,
पर ओवरऑल स्पीड ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम है उसके अंदर जो ओवरऑल एनर्जी वो सेम रहेगी। तो जो इसके अंदर मीन, और वी कैन से दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कि जो इसके अंदर वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स की है, दैट विल रिमेन, वो अफेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से जो एनर्जी है हमारे पास, जो कि मॉलिक्यूल या एटम्स के मूवमेंट की वजह से है और वो किसी डायरेक्शन में है, देन दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो एटम्स के अंदर जो एनर्जी होती है उनके मोशन की वजह से, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल एनर्जी। So we have covered the first kind of the energy, and the second kind of the energy is the rotational energy. Now, as I said that if we are dealing with the atom, then we will be having different kinds of energy. When we will be dealing with the molecules, then we will be having different kinds of the setup, or we will be having different kinds of energy. So now we come to molecule. Suppose I take the molecule of oxygen, because it will be having two similar atoms, and these atoms are oxygen atoms. So I take this as the atom number 1 of the oxygen, and this atom of the oxygen is connected with the second atom of the oxygen. Both are the oxygen, and it is the O. Both are connected to each other, and these are connected by some bond, and this bond which is present in the oxygen, that is called as covalent bond, which is being due to the equal sharing of electrons. Equal sharing of electrons. Equal sharing. Equal sharing of electrons. ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी आपको फ्लाइट टेस्ट डिस्कशन आप बता दीजिएगा, वी विल स्टार्ट डिस्कशन, नो प्रॉब्लम। यस सर। तो उसके बाद इसमें अभी हमें यूज करना है, इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग किया, इक्वल शेयरिंग किया, तो शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्डिंग है, दैट विल बी अ बॉन्ड, और दैट वी मे कॉल दैट दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट दिस बॉन्डिंग इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो गेंद हैं, और उन दो बॉल्स को हमने एक इलास्टिक से अटैच कर दिया, सो फ्लेक्सिबल, और दीज आर द इलास्टिक इन नेचर। So when these kinds of the system we are having, suppose we are having the dumbbell, and what we can do, we can mark the midpoint of this dumbbell as the axis। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डंबल है और ये इसका मिड पॉइंट है, so what can I do, I can rotate the dumbbell on this mid point। जैसे मान लीजिए पेन है हमारे पास, हम बीच से इसको करके और हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं। तो इस तरह से जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, जो molecules जो हैं, they can have the energy of this kind in which the molecule will be rotating about some point। कि वो molecule जो है as a whole molecule that can go from one place to another place, that will be counted as translation energy, and that can rotate on its own axis also। So this kind of energy, when this molecule will be rotating on one of its axis, that is called as rotational energy। So this will be the second kind of energy, rotational energy। So here we can see that if we are having heavier molecules and they are rotating at high velocity, so their rotational energy will be more. And if we are having more number of the atoms in the molecules and they will be rotating at high velocity, then their energy will be more than this molecule। So if we are talking about the CO2, in that case we will be having carbon, and two oxygen molecules will be attached with the carbon। So in that case, due to the bigger size of the molecules and more when it will be rotating, so it will be containing more amount of the energy, so this will be having more rotational energy। So the earlier thing which you were talking about, the specific heat and those other properties, so we can see that whenever we are going to give some energy to an atom or to a molecule, so it will be depending that how it is going to use that energy। कि जब भी हम किसी एटम को या मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि वो उस एनर्जी का यूज कैसे करेगा, कि वो उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।
तो सिर्फ से वो ट्रांसलेशन एनर्जी में यूज कर पाएगा या रोटेशनल एनर्जी में यूज कर पाएगा, तो वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा एटम से मोलिक्यूल्स होंगे तो उसकी मोर एनर्जी रोटेशन में चली जाएगी। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जो इस तरह का आइटम है जो कि जिसको हम एनर्जी देते हैं और वो मोर एनर्जी को अपने रोटेशनल एनर्जी में स्टोर कर लेता है, तो इट विल बी गोइंग इनसाइड द एटम और द मोलिक्यूल, वो रोटेशनल एनर्जी केस में मोलिक्यूल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह के मोलिक्यूल्स में ये पाया गया है दे आर हैविंग द हाई स्पेसिफिक हीट, दे आर हैविंग द हाई स्पेसिफिक हीट। अब ये हाई क्यों है? उसका एक कारण ये है कि जो हम उसको हीट देंगे या एनर्जी देंगे, हालांकि यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बड़ा डिबेटेबल है, व्हाट इज हीट, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, व्हाट इज हीट, ये थोड़ा सा हम पार्ट विल स्टडी। बट द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द पार्ट ऑफ द एनर्जी विच विल बी गिविंग टू द मोलिक्यूल, तो उसमें ये डिपेंड करेगा कि एनर्जी कहाँ चली गई। तो वो जहाँ जाएगी वो उसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकती है, जाने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं भी बढ़ा सकती, बट दैट विल बी डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन एक चीज डेफिनेट है कि वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं दैट इज कंजर्व, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व बाय द फर्स्ट लॉ। So this energy which I have supplied either to a atom or to a molecule, that will remain inside the atom or the molecule, and that we will count as, or we will say that it is being converted into enthalpy. Why? Because we are saying that enthalpy is U plus Cv. तो एनर्जी वो चाहे कहीं पे भी जाए पर एटम के या मोलिक्यूल के अंदर एज इंटरनल एनर्जी वो स्टोर रहेगी, तो वो स्टोर रहेगी तो ऑब्वियसली एज एनर्जी स्टोर्ड एंड इट विल बी कॉल्ड एज द एनर्जी स्टोर्ड एज एंथैल्पी। So we can say that enthalpy is not something very basic property or very nature or the nature of the atom or molecule। कि enthalpy कुछ ऐसा नहीं है कि जो एटम या मोलिक्यूल के नेचर में था। जैसे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर, that is it is inside the atom or molecule। If we talk about the pressure, then it is also related with the nature of the molecule कि जो उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो एंथैल्पी कोई ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं थी, इसे हमने अपने सुविधा के लिए क्रिएट किया। हमने अपनी इजीनेस के लिए क्रिएट क्यों किया? वो इसलिए किया कि जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो बहुत बार क्या होता है कि दिस कॉम्बिनेशन कम टू अस, तो ये कॉम्बिनेशन बार बार आता था और इसको बार बार हमें पढ़ना पड़ता था या बार बार उसको एनालाइज करना पड़ता था। तो U प्लस CV लिखने की बजाय जस्ट वी सेड दैट वी विल राइट इट एज H, ये उसे हम H की तरह लिखेंगे एंड वी विल कॉल इट एज एंथैल्पी, और इसे हम एंथैल्पी की तरह बुलाएंगे। हमने इसको नाम। So we have discussed about the translational energy and rotational energy. Now third kind of the energy is the vibrational energy. So vibration, as we know that it is a to and fro motion along the axis of the atom or molecule। कि एटम और मोलिक्यूल या कोई भी चीज है अगर मान लीजिए वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशन। So this atom or molecule, if they are vibrating, if they are having some vibration, so and this vibration can be lower or higher, lesser or higher। So when they will be vibrating and this vibration will be on this axis, ये जो एटम का या मोलिक्यूल का अपना एक्सिस है ये उसके अबाउट ही होगी वाइब्रेशन। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द वाइब्रेशनल एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अगेन ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है एटम्स और मोलिक्यूल्स की अलग अलग होती है, उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी में एक चीज आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी कैन बी कंटेन्ड बाय सिंगल एटम आल्सो। इसमें मोलिक्यूल होना जरूरी नहीं है, ये जो सिंगल एटम है उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है। लेकिन जो ट्रांसलेशनल और सॉरी जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल एनर्जी, उसके लिए मोलिक्यूल मोलिक्यूल होना जरूरी है, एटम्स के अंदर वो एनर्जी नहीं हो सकती। तो सिंगल एटम के अंदर दो तरह की इंटरनल एनर्जी हो सकती है, दैट विल बी ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशन। अगर मान लीजिए मोलिक्यूल है, देन इट कैन हैव all these kinds of energy, translational, vibrational and rotation। तीनों एनर्जी हो सकती हैं और वो एनर्जी ही डिफाइन करेंगी कि वो कैसे काम करेगा, क्या उसमें रहेगा। So this is something about the internal energy। If we are having any point to discuss, we can discuss at this point। No, sir. I understood all three type of energies and the concept of like atom and molecules. Okay. So molecules can have all the three type of energy, and this if it is atom, then it will have translational and vibrational energy। तो जैसा कि हम रेफ्रिजरेंट के बारे में देखते हैं,
तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं दे आर इन दी मोलिकुलर फॉर्म, जो यहाँ तक मुझे आइडिया है। ऐसा कोई शायद रेफ्रिजरेंट Yes. नहीं जो कि एटम की है ना जी। तो Yes, sir. आई सपोज, या मतलब जो मेरा अपना परसेप्शन है वो ये है कि वो मोलिकुलर फॉर्म में हम इसलिए लेंगे बिकॉज इट विल बी हैविंग हायर स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं हम नहीं चाहते इफ टेम्परेचर वेरी, Right. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा दैट विल बी बेटर, इसलिए हम फेज चेंज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वहाँ पर। वो यू कैन से दैट if we are having the molecules as a refrigerant, they will be giving the higher specific heat in comparison to atom. So now we come to the second part, because we were having the H is equal to U plus PV. So our second part comes to the PV, pressure and the multiplication of pressure and volume. Now here we can see, or we want to know how we can measure the internal energy. कि अभी तक हमने ये तो बात किया कि भाई ठीक है हम इंटरनल एनर्जी होगी, पर लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एनर्जी को मेजर कैसे किया जाएगा, इसको कैसे नाप सकते। तो क्योंकि अभी हर एक एटम की एनर्जी को हम चेक नहीं कर सकते कि भाई हर एक एटम है हमारे पास और हर एक एटम की एनर्जी को हम चेक करेंगे और फिर उसको काउंट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो व्हाट इज बीइंग फाउंड दैट दिस इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, और वी कैन से दैट टेम्परेचर कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी हम टेम्परेचर कह रहे हैं दैट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल, कि जो भी हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इफ दे आर हैविंग द हायर अमाउंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी देन दे विल बी हैविंग द higher temperature. If they are having the lesser amount of the internal energy, then they will be having the lesser temperature. So what we can say that internal energy is completely dependent upon the temperature, and generally what we do, we measure the temperature in Kelvin. हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे। तो केल्विन का जो स्केल था दैट वाज बीइंग गिवन बाय द साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन, तो उन्होंने स्केल दिया था ये केल्विन का। तो अब अगर मान लीजिए सपोज व्हाट वी से, और आई से दैट वी आर हैविंग समथिंग एट 0 केल्विन, कि हमारे पास जो भी कोई एटम है, मॉलिक्यूल है या गैस है दैट इज एट 0 केल्विन। So if we say that any atom, molecule or gas is at 0 Kelvin, it means that its translational, rotational, and vibration, all these three kind of energy will be zero, because it is at 0 Kelvin, and we said that we will be measuring the internal energy at 0 with the temperature, and the temperature scale for this being device is measured as Kelvin. So if anything, either it may be solid, liquid, or gas, that is at 0 Kelvin, then what we will say that its internal energy is zero. So if its internal energy is zero, so we will say that it will translational, rotational, and vibrational energy, these will also be zero. तो एक गैस मान लीजिए कि जो एक हम मान लीजिए कार्बन गैस हम जो लेके चल रहे थे, और हम कह रहे थे जब वो एक टेम्परेचर पे थी, मान लीजिए दैट वाज एट 300 केल्विन, so that was having very high energy, यहाँ से वहाँ भी जा रही थी, वाइब्रेट भी हो रही थी, so it was having very high energy. So as the temperature will keep on going down, its energy will keep going down, and at 0 Kelvin what it will be just like a bit of stone, कि जैसे पत्थर होता है, पत्थर एक जगह पे रख दिया गया, वो वहां से इधर उधर नहीं जा सकता है, जहाँ पर रखा हुआ है वो वहीं पर रखा है, तो उसकी वो स्टेज आ जाएगी 0 केल्विन के ऊपर। और ये जब स्टेज आ जाएगी तो इसकी इंटरनल जीरो हो जाएगी, और ये इधर उधर कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकती है, अपने आप से ये फ्रीज हो जाएगा सारा का सारा। तो इसलिए जो 0 केल्विन है, मतलब कि अभी तक तो कोई चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा स्टेज हो जाता है कि मान लीजिए सभी गैसेज हैं, उनके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, तो फर्स्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कि इतना उससे हीट निकाल लिया जाए बाहर के वो यहाँ तक पहुँच जाए। So for that we are having cryogenic refrigeration systems, which are using very different kinds of alternate systems also. So we will using the cryogenic system, refrigeration system. So sir, are we having any system, or we are having any study of the cryogenic refrigeration in the GTC or not? नहीं सर, हम नहीं करते हैं क्रायोजेनिक पे। हाँ जी, क्रायोजेनिक पे तो मुझे लगता है नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री रेफ्रिजरेशन की नहीं कर रही होगी, मतलब कोई स्पेसिफिक हो तो अलग बात है ना।
यस सर, हमने नहीं इसको स्टडी भी नहीं किया ज्यादा और इस पे काम भी नहीं किया है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने भी खैर कोई एक्सपोजर नहीं है, तो हम इस पे कुछ बात नहीं करेंगे जी, हम अपने काम पे आगे चलते हैं जी। ओके। तो what will happen when we are at 0 Kelvin, so we will be having 0 इंटरनल। और ये सभी टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए होगा कि जब वो 0 केल्विन पे आ जाएंगे तो उनकी एनर्जी जो है दैट विल बिकम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है दैट विल बी द मेजर ऑफ द इंटरनल एनर्जी, कि वो जो है मेजर है वो इंटरनल एनर्जी का मेजर होगा कि उस पार्टिकुलर गैस के लिए, कि इसका जो टेम्परेचर है अगर बढ़ गया है तो दैट विल बी हैविंग दिस मच काइंड ऑफ एनर्जी। सो नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट, कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का अब जो तरीका है, आइदर वी कैन यूज द some procedure, or what we will do for this kind of the calculation. Suppose I am having water, ये मान लीजिए मेरे पास water है, and this water I am having as 1 kg of H2O I am having. So what I will do, I will be providing it some amount of heat, इसे कुछ मैं heat provide करूंगा। Say I give the heat Q in, which I am supplying this water, and this water was at the 14.5 degrees Celsius, and by I will keep on supplying this heat. This will be again a system which will be closed from the outside. सिस्टम के साथ कोई मतलब ये हीट जा सकती है, पर लेकिन ये कोई अपना हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ नहीं दे पाएगा। So what I will do, I will increase its temperature from 14.5 to 15.5 degrees Celsius. And the amount of heat which I will be supplying this to increase the temperature of 14.5 to 15.5 degrees Celsius, I have increased the temperature by 1 degree Celsius. And what I will do, I will call it as specific heat. And what I was doing it at constant pressure. So if I was doing it at constant pressure, then I will call it as specific as Cp. And if I was doing this as this constant volume, then we will call it as Cp. So what we are trying to say that we are not changing the volume, कि जनरली हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम चेंज ना हो, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। पर लेकिन अगर मान लेते हैं कि वी आर हैविंग ओनली वेरी स्लाइटली टेम्परेचर चेंज, and this temperature change will be done in the equilibrium condition, and it will be no entropy loss and other things will be taken as, which we call the process as quasi static, कि इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो किया जाएगा ताकि जो हीट है वो इक्विलिब्रियम में हो सके, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बहुत जल्दी करेंगे तो हमारा कुछ हीट का पार्ट ट्रांसफर वेस्ट हो जाएगा, तो उसको बहुत ही स्लो से कैसे किया जाएगा। एंड बाय दिस वी विल बी मेजरिंग द स्पेसिफिक हीट, and this specific heat Cp when multiplied by delta T and mass, that will be equal to Q in, कि हमने क्या उसको दे दिया। तो जो ये मास है, क्योंकि we have taken it as 1 kg, and delta T also when we have taken as 1 degree Celsius, the amount of the heat which we are supplying to this system, which we are giving to this system, that will be called as specific heat। तो specific heat का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमने हीट प्रोवाइड की दैट विल गो एज द इंटरनल एनर्जी, तो वो इंटरनल एनर्जी हम चली जाएगी। एंड सो हियर सो वी कम टू अ पॉइंट दैट वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इनसाइड द सिस्टम, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेजर रिलेटिव अमाउंट। एग्जैक्ट तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, रिलेटिव अमाउंट को मेजर करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि एट सम टेम्परेचर इट वाज हैविंग द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0, ऐसा मान लेते हैं कि एट सम टेम्परेचर ये इसकी इंटरनल एनर्जी 0 थी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी अलग अलग बुक में थर्मोडायनामिक्स की अलग अलग बुक अगर आप रेफर करेंगे, डाटा रेफर करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है उसमें एट ए पार्टिकुलर पॉइंट हमें अलग अलग मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बुक ले रहे हैं तो उसमें हमें इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है एट 0 डिग्री सेल्सियस मे बी कि उन्होंने दे दिया कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी 15 किलो जूल है, and at 20 degrees Celsius energy is 20 kilojoule. In another book you will find that at 0 degrees Celsius the internal energy was 10 kilojoule and another was the 15 kilojoule. So we may found this kind of data, but the thing is that the difference in the internal energy will remain. यहाँ पे भी 5 किलो जूल है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 किलो जूल है। तो वो डिपेंड करता है कि वो जो डेटम है कि जिस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो कुछ बुक्स उसमें रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, कुछ 15 डिग्री सेल्सियस लेते हैं,
कुछ 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। वो डाटा जो मतलब एक्सपायर करते हैं, डाटा मतलब जो बनाते हैं लैब में टेस्टिंग वगैरह करके, तो उनका अपना अपना रेफरेंस लेवल होता है बहुतों का, तो वो अलग अलग रहता है। बट ओवरऑल जो है बाकी जो रिलेटिव, क्योंकि हमें बहुत जहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी जो पड़ेगी, वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी। हम ये देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ गया है। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, दैट वी जनरली डोंट बोदर अबाउट। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम बस क्या देखते हैं, चेंज इन इंटरनल, कि उसमें चेंज क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम सिर्फ उसी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते हैं। तो एक रेफरेंस या डेटम पॉइंट लिया जाएगा, डेटम पॉइंट के अबाउट फिर उसमें सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फॉलो करने के बाद वी विल केम टू नो दैट व्हाट इज स्पेसिफिक, एंड बाय दैट वी विल सी, or specific or by giving energy we will see that at what temperature this kind of gas, what amount of energy it will be containing, कि जो भी हम गैस ले रहे हैं उसके अंदर क्या इंटरनल एनर्जी रहेगी, so that will be calculated. So is there any point of discussion? No, sir. Clear about we will be looking at change in internal energy, because absolute rate you can have based on what datum point you are selecting. Yeah. So I will be stopping here.